Good afternoon. Today I am going to take English from Moments, and the topic is the beggar. Today I am going to take part 4 of this lesson. So my dear students, I welcome you once again in today's class. So we saw in the last part that Serge's anger had vanished because he was feeling very sorry and ashamed of putting a beggar to manual labor, to physical labor, because he was very weak, he was very sick. So the advocate Serge was repenting for giving a physical work to that thin beggar. Okay. And the beggar made his appearance on the first of every month, and he earned half a ruble for his work. And one day what happened? Serge shifted his goods from that house to another house, and he also hired this beggar for doing the household work, for doing the shifting work. Okay. And then after the shifting was done, Serge became very happy, and he thanked the beggar that he was very serious this time and he had no objection to work for him. Then Serge asked the beggar if he knew to write, and the beggar replied that yes, he could write. Then Serge handed a letter to him and told him to go and meet a friend of his the next day who would provide some copying work to the beggar. And in this way, 2 years passed by, and Serge was never again seen in the yard for work. And then one evening, while Serge was standing in front of a ticket counter of a theatre, he found Serge buying tickets for himself there and paying for the seat in copper coins. So that's all for the third part. Okay, till here I have explained in the third part. Okay, so after that what happens? Let's see in the fourth part, I mean part 4. Okay. So Serge was standing near the ticket counter, and he saw a short man, and he recognized that it was Laskov the beggar. Now he was looking changed. He has completely changed himself. So he cried out. Serge cried out, "Laskov, is that you?" cried Serge. तो सरजी बोल उठे, वो एडवोकेट बोल उठा लस्कोफ को देखकर कि लस्कोफ, ओ तुम हो, बहुत अच्छी बात है. Recognizing in the little man his former wood chopper, और बहुत ही चौंके हुए भाव से एडवोकेट ने लस्कोफ से पूछा, लस्कोफ, इज दैट यू? ओ तुम? और उसको यह मन में खुशी हुई सरजी को कि ये उसका पुराना वुड कटर रहा है, वुड चॉपर रहा है, जो कि इसके लिए लकड़ियां काट देता था टुकड़े में. कौन? लस्कोफ द बेगर. हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? How is everything with you?
तो जैसे ही सर जी उसको देखा, उसका हाल चाल जानना चाहा और एडवोकेट पूछ बैठा लस्कोव से कि तुम कैसे हो और तुम आजकल क्या कर रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो, और सब कुछ कैसा है, तुम्हारा जिंदगी कैसा चल रहा है, तुम्हारे समय कैसे चल रहे हैं। ये सारा चीज सर जी ने पूछा, एडवोकेट ने पूछा। किससे? लस्कोव से। लस्कोव जवाब देता है, ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो फिर यह लस्कोव भिखारी जो बेगर रहता है, अब यह बेगर से वो नोटरी बन गया है। ठीक है, उसकी जिंदगी में तब्दील देखो किस प्रकार से बदलाव हुआ है। ही हैज बिकम ए नोटरी। नोटरी मतलब एक ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट का रिलेटेड काम जो करते हैं, लॉ से रिलेटेड जो काम करते हैं, उसको बोला जाता है नोटरी। तो वो अब एक नोटरी बन चुका था। ओके, और उसे 35 रूबल्स महीने में मिल जाते थे। 35 रूबल्स वाज एनफ फॉर अ मैन लाइक हिज, मैन लाइक लस्कोव। सो he was earning a lot. He was earning 35 rubles a month. And before that, when he was doing the work of wood chopper, he was earning half a ruble a month. So how much he is earning now, right now? 70 times of what he was earning as a wood chopper. Clear? तो अभी 35 रूबल्स पर मंथ उसको सैलरी मिलता था, इस भिखारी को, लस्कोव को। तो वो अपनी बातें बता रहा है लस्कोव। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फिर वही आ गया, आई एम सॉरी। थैंक हेवन, दैट्स फाइन। तब सर जी एडवोकेट कहता है, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हेवन मीन्स थैंक गॉड। ओके, बहुत अच्छी बात है कि तुम एक नोटरी बन गए हो, तुम अच्छे पैसे कमा रहे हो। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, तुमको ऐसे पोजीशन में देखकर मैं बहुत खुश हूं, मैं बेहद खुश हूं, बहुत ज्यादा। मैं अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना प्रसन्न हूं अंदर से, बाहर से। ओके, ये हुआ डिलाइटेड। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कोव। फिर बोलता है लस्कोव, मैं सचमुच बहुत 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 ज्यादा खुश हूं तुम्हें ऐसे अवस्था में देखकर। मतलब पहले भीख मांगता था, और एक भिखारी अगर नौकरी कर बैठे कोई अच्छा, तो उससे अच्छा खुशी की बात क्या होती है। ठीक है, तो ये तो भिखारियों के लिए संदेश जाने चाहिए, पढ़े लिखे भिखारियों के लिए। ये जो लेसन है एक संदेश देता है। पढ़े लिखे नौजवान जो भीख मांगते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको लस्कोव के जैसा कार्य करना चाहिए। ओके, यू सी, यू आर माई ग्रैंडसन इन ए सेंस, गॉडसन, सॉरी नॉट ग्रैंडसन, गॉडसन। तुम देखो, तुम तो मेरे जैसे 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 भगवान के पुत्र होते हो, उसी प्रकार मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें अपना गॉडसन मानता हूं, अपना ईश्वर पुत्र मानता हूं। तुम तो मेरे ईश्वर पुत्र के जैसे हो। समझ लो कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ। फिर एडवोकेट बोलता है, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हें सही रास्ते के तरफ धकेला। ठीक है, यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू? तुम्हें याद है मैं तुम पर कितना गुस्सा किया, तुम पर कितना गर्म हो गया था मैं, कितना गर्म हो गया था मैं, कितना बिगड़ गया था तुम पर। हाँ, तुम्हें कितना मैं डांटा था, तुम्हें याद होगा। तो ये कह रहा है
लस्कॉफ से ये बातें कर रहा है। कौन? सर्जी, एडवोकेट। और कह रहा है मेरा रोस्टिंग का ही नतीजा है, मेरा वो डांट फटकार का ही नतीजा है, जो मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया था, तुम्हारी बेइज्जती हमने की थी, उसी का नतीजा है। तुम्हें याद होगा, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। और उस दिन जब पहला दिन तुम मिले थे, तुम अपने आप को कभी शिक्षक कह रहे थे, उस दिन अपने आप को शिक्षक बता रहे थे, और उसके पहले मिले थे, पहले दिन घर पे मिले थे तो तुम अपने आप को शिक्षक बता रहे थे, और तुम्हें जब मैं मार्केट में मिला था तो तुम अपने आप को एक स्टूडेंट बताए थे। ठीक है, तो तुम काम के लिए आए थे उस दिन, और तुम बहुत ही भूखे थे, व्याकुल थे। यू वर इन अ मिजरेबल कंडीशन, इन अ हेल्पलेस मैनर, एंड दैट टाइम you considered that you have done a fault, and you realized your mistake, and you also admitted that you are neither a teacher, neither a student. You were working in a choir group, and you were just taken out of the choir group. You were removed from there. Everything you told. And how I kept you sinking into the ground. अब मैं किस प्रकार तुमको बाध्य कर दिया, सच बोलने पर। यही इसका मतलब हुआ। तुम एकदम मेरे सामने झुक गए काम के लिए। तुम इतने भूखे थे, प्यासे थे, इतने व्याकुल थे कि तुम एकदम समझ लो कि मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पैरों तले पड़ गए। और उसी का नतीजा है कि आज इतने बड़े आदमी बन गए हो। ओके, ये वर्ड का, इस जो सेंटेंस का बहुत लंबा मीनिंग है। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तब सर जी कहता है बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड मैन, तुमने मेरे शब्दों को याद रखा और नहीं भूल पाया। जो कड़वे शब्द हमने कहे थे उसे तुमने याद रखा, और उसी का नतीजा है कि आज तुम्हारा किस प्रकार से विकास हुआ है, तुम्हारी जिंदगी का विकास हुआ है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द एडवोकेट एंड द बेगर, लस्कॉफ। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद लस्कॉफ बोलता है, लस्कॉफ क्या कहता है देखो, थैंक यू टू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेड लस्कॉफ, लस्कॉफ कहा, इफ आई hadn't come to you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। तो लस्कॉफ बोलता है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर मैं आपके पास नहीं आया रहता नौकरी के लिए तो अब तक मैं अपने आप को एक स्टूडेंट या एक टीचर कहकर मैं दर बदर भीख मांगते रहता। वही कार्य मैं करते रहता जो कार्य पहले करता था। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं आपके पास गया और आपके बातों का प्रभाव मुझ पर रहा। कौन कहा? लस्कॉफ। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। और बोला कि मैं आपके शरण में आकर, कह रहा है लस्कॉफ कि मैं आपके शरण में आकर मैं एक गड्ढे से बाहर निकल गया, मैं एक पिट से बाहर निकल गया। समझ लिए मेरी जिंदगी क्या था, पूरा बर्बाद हो गया था, जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। देयर वॉज नो पर्पस ऑफ माई लाइफ लेफ्ट, बट यू गेव मी अ पर्पस इन माई लाइफ एंड ड्यू टू विच I could change myself. And now it is the effect of your words that had taken place in me, and now I am working as a notary. Clear? Now next.
I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. फिर कहता है ये बेगर कि मैं बहुत ही खुश हूं और इतना खुश हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता, इसीलिए इंडीड लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उन शब्दों का, आपका जो दयावान, आपके जो दयालु शब्द निकले थे आपके मुख से, और आपने जिस प्रकार से मुझे एक गर्त से बाहर निकाला और मुझे एक जगह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। और मैं आपका वो कुक ओल्गा, उसका भी आभारी हूं, जिसके कारण मैं आज मेरी यह पोजीशन है। आई हैव अटेन्ड अ गुड पोजीशन। ओके, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। और कहता है भगवान ईश्वर उस अच्छी और नेक महिला को आशीर्वाद दे। You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. और तुमने और आपने इसका पर आपने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। उस दिन बहुत अच्छा बर्ताव किया, जिस दिन शिफ्टिंग हुआ था उस दिन बहुत अच्छा बर्ताव किया। उसके बाद कौन? एडवोकेट। और यह भी कह रहा है लेस्कॉफ कि मैं आपका जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। इंडेप्टेड टू यू मतलब मैं जिंदगी भर के लिए मैं आपका कर्जदार बन गया हूं। ठीक है। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा। लेकिन सही बात बोलता हूं, एक बहुत ही कड़ा शब्द कह रहा हूं कि ये आपकी कुक जो ओल्गा थी, उसी ने मुझे बचाया है ऐसे नर्क से। मैं जो भीख मांगने का कार्य करता था, इस प्रकार के कार्य से, और हमेशा शराब में डूबा रहता था, इससे मुझे किसने निकाला, किसने उबारा है? आपका कुक ओल्गा ने। हु सेव्ड मी। हाउ इज दैट? कैसा था, किस प्रकार से मेरा बदलाव हुआ? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। किस प्रकार से मेरा बदलाव हो गया, कह रहा है। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. जब आपके घर, ये लेस्कॉफ बता रहा है कहानी, ओल्गा का कहानी। ओल्गा उसे क्या क्या कहती थी, ओल्गा जो कुक थी। ये एडवोकेट से कह रहा है कि जब मैं आपके घर लकड़ियां काटने के लिए आया करता था, टुकड़े टुकड़े में लकड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा करने आया करता था, तो वो यह कहा करती थी, क्या कहा करती थी? ओ यू शॉर्ट। ओ यू शॉर्ट का मतलब बेकाम के आदमी, बेकार है तुम्हारी जिंदगी, शॉर्ट उसको कहेंगे। तुम्हारा कोई काम का जिंदगी नहीं है, तुम भीख मांगते हो। ओ यू शॉर्ट। हाँ, शॉर्ट मतलब निकम्मा भी होगा, तुम कितने निकम्मे हो। कौन? वो ओल्गा कहती थी कुक। Oh, you short, you miserable creature, you helpless creature. ओल्गा क्या करती थी? तुम एक मिजरेबल क्रिएचर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते हो भीख मांगने के सिवा। There is nothing for you but ruin. और ओल्गा ये भी बोला करती थी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बस तुम्हारे लिए बर्बादी है। तुम बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे शराब पीते पीते और भीख मांगते मांगते। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड वीप। और ये कहानी बता रहा है ओल्गा का, और बोल रहा है ये बेगर कि और फिर क्या करती थी ओल्गा? वो मेरे सामने बैठ जाती थी और दुखी हो जाती थी, बहुत मेरे लिए दुखी हो जाती थी, मेरे चेहरे को देखती थी और रोती भी थी मेरे लिए। शी वेप्ट फॉर मी।
उसके मन में मेरे लिए इतने सहानुभूति थे, इतने फीलिंग थे. She has emotional feeling towards me and she couldn't control her emotions and she wept for me. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. और ये भी बोला करती थी, ओह यू अनलकी मैन, तो बहुत ही बदनसीब हो, तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है इस संसार में, और ना ही कोई इस संसार में तुम्हारे लिए खुशी मिलेगी, तुम्हें खुशी आएगी. यू ड्रंकर्ड, अरे तुम पियक्कर, दिन रात पीते रहते हो, यू ड्रंकर्ड. यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में मरोगे, तुम नरक में जल जाओगे, खाक हो जाओगे. कौन बोलती थी? ओल्गा द कुक. ओ यू अनहैप्पी वन, हे बदनसीब. And so she would carry on, you know, in that strain. और इसी तरह से वो अनाप शनाप बकते रहती थी. अनाप शनाप मतलब सही बात बकती थी. वो इसके दुख को, इस भिखारी लस्कॉफ के तकलीफ को देख नहीं सकती थी ओल्गा, और इसीलिए अनाप शनाप बकती थी कि लानत होनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी पर जो भीख मांग रहे हो, शराब पीते हो, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, ऐसी बातें कहती होगी. ओके I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. और कह रहा है लस्कॉफ उस एडवोकेट से कि आपको पता नहीं, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टेल यू, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि वो कितना तकलीफ की है मेरे लिए, कितना तकलीफ सही है, हाँ, तकलीफ का सहन की है उसने, और कितने आंसू निकले हैं मेरे लिए उसके आंखों से, कितने आंसू निकले हैं मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, कितने बार आंसू बहाई है हमारे लिए, दैट आई कैन नॉट काउंट. बट द चीफ थिंग वाज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी. लेकिन जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं, जो मेन बात, वो यह है कि वो मेरे लिए लकड़ियां चॉपिंग कर देती थी, वही करती थी. मैं तो हिल भी नहीं सकता था, मैं ठीक से अपने हाथ को मैं ऐसा उठा भी नहीं सकता था लकड़ियां काटने के लिए, तो वो मेरे लिए लकड़ियां काटती थी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. आपको पता है सर, एडवोकेट से कह रहा है, महाशय आपको पता है? आपको पता नहीं है, मैंने एक भी लकड़ियां नहीं काटी, एक टुकड़ा भी मैंने नहीं काटा आपके लिए. ये जो टुकड़ा जो लकड़ियों का काट रहे थे, वो काटने का कार्य वो कौन करता था? ओल्गा. She did it all. ये सब वही करती थी. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. और किस प्रकार मैं अपने आप को बचा पाया, हाँ, ऐसे दलदल में मैं समा गया था, शराब के दलदल में, जिससे कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था. मैं बाहर निकलना चाह कर भी नहीं निकल पाता था, लेकिन वो मुझे बचाई, वो मुझे नई नई जिंदगी दी. ओल्गा ने मुझे नई जिंदगी दी है. मैं क्यों बदला हूं? आखिर मैं शराब पीना क्यों छोड़ दिया? उसे देखकर मैं कह नहीं सकता. उसके रोने को देखकर, उसके चेहरों को देखकर, उसके मासूमता को देखकर मैं अपने आप को बदल लिया. Clear? I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. और लस्कॉफ ये भी कह रहा है कि यही सिर्फ मैं यही जानता हूं कि उसके जो शब्दों को सुनकर, उसके अच्छे कार्य को देखकर मेरे अंदर में, मेरे मन में एक बदलाव आ गया और मैं अपने आप को बदल लिया. She set me right and I shall never forget it. वो मुझे सही रास्ते पर लेकर आई और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता.
उसके एहसानों को कभी नहीं भूल सकता. However, it is time to go now. There goes the bell. और तब लस्कोव कहता है, ठीक है, फिलहाल हाँ, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का. अब थिएटर का जो शो शुरू हो रहा है उसका बेल बज गया है. लस्कोव bowed and departed to the gallery. उसके बाद लस्कोव झुकता है, सलाम करता है और गैलरी की तरफ प्रस्थान करता है. So we have come to the end of this lesson, this beautiful lesson. So I'll come with a new topic in the next class. Thank you.